देयर वर 5 राउंड्स। जितने भी राउंड्स का आंसर था उन सभी के बीच में हमने क्या कर दिया, एडिशन साइन लगा दिया। ये बीच में जो प्लस साइन लगा है, दिस रिप्रेजेंट्स एडिशन। नाउ I want you to open the brackets and then solve. Wherever you see two signs together, I want you to combine them. बेटा ब्रैकेट्स आप उन नंबर्स के अराउंड लगा सकते हो जो स्कोर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं। आपको क्वेश्चन में स्कोर्स दिए हैं 25, -5, -10, then 15 and last round also has 10। ये उसके राउंड्स का स्कोर है। तो जो स्कोर्स हैं उन सभी को ऐड करना है। तो जहां पे स्कोर्स नेगेटिव थे मैंने उनको ब्रैकेट में डाला है। इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। नाउ वेरेवर यू सी टू साइंस टुगेदर, कंबाइन करो उनको। If anyone can answer how do you solve when you have multiple values, तब हम प्लस माइनस कैसे करते हैं? Anyone who can answer? आपके पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, कुछ प्लस वाली हैं, कुछ माइनस वाली हैं। Okay, you could do from left to right. The easiest way is you start from left. लेफ्ट से स्टार्ट करो, दो दो नंबर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले पहले दो नंबर्स का आंसर निकाल लो, फिर जो आएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट टू ले लो, फिर नेक्स्ट ले लो और फिर नेक्स्ट ले लो, इस तरह से। और वी कैन डू अनदर वे, जो नंबर्स प्लस वाले हैं उनको ग्रुप कर लो और जो माइनस वाले हैं उनको ग्रुप कर लो। यस राइट चिराग, दैट्स राइट। जितने नंबर्स आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं उनको इकट्ठे लिस्ट कर लो। 25 ये पॉजिटिव है, लास्ट में 15 पॉजिटिव है और 10 पॉजिटिव है, इनको कंबाइन किया मैंने। 25 हैज नो साइन, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 25 का कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है। जो नेगेटिव वाले हैं उनको पीछे लास्ट में मैंने लिस्ट कर दिया। इनका आंसर और इनका आंसर फाइंड आउट करो। पहले ग्रुप का आंसर क्या आएगा? $25 + 15 + 10 50। इस ग्रुप का आंसर आ गया 50। सेकेंड ग्रुप का आंसर बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? अब आपके नंबर्स कैसे हैं? इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट्स राइट, यस। Tell me once you note this down.
Okay, Nanya, let me know once you write down. मुझे बता देना बस. Okay, Gershan, you want me to do with left to right? Let me just show you here on a side by the time the students are writing down. Okay, Ananya, maybe you have done the way I am. Okay, Harsheen, yeah. अगर आप left to right solve करते, अगर आपने इसको left to right solve किया होता, I am writing down the numbers again. 25 minus 5 minus 10 plus 15 plus 10. So start solving from left to right. पहले दो numbers जो हैं उनका answer find out कर लो. Remember the rules. If your numbers are of opposite sign, you have to subtract them. If your numbers are of the same sign, you have to add them. पहले दो numbers कैसे हैं? Opposite sign के हैं. इनकी हम करेंगे subtraction. The answer will be 20 with the plus sign. बाकी के सारे numbers को आप as it is list कर सकते हो. पीछे के जो तीन numbers हैं. अब first two को फिर से solve करो. Yes, Parth. It's not necessary to write this. It's only for those who have done this way. Again, your numbers are of opposite sign. If you want, you may write down Parth. नीचे लिख लो अगर नहीं है space. But it's not necessary. Opposite है, subtract करके क्या आएगा? 20 and 10. 10. Positive or negative? बाकी लास्ट में आपके पास दो नंबर्स बच गए. अब इन दोनों को कंबाइन करो. सेम साइन. सेम साइन है तो नंबर्स ऐड हो गए. लास्ट में प्लस. Ananya, is your answer same? So you'll get the same answer in either case. Okay. So those who have done from left to right, I hope it's clear. I hope now everyone has noted this down. Let's look at next question. Question number 3, at Srinagar, temperature was -5 degrees on Monday. It dropped by 2 degrees Celsius. Kindly underline this, dropped by 2 degree. So dropped means decrease. Decrease means कम हो रहा है. और इसको हम कैसे show करेंगे? Subtraction से. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? कम होने के बाद temperature कितना हो गया? उसके बाद on Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. Rose means increased. And increase is shown by addition. Yes, Rishit? Ma'am, it is compulsory to write the second method. No. One of Ma'am, the I have done was the asking. first method. It is Yes, easy. yes, yes. One of the students was asking me to show it, so that's why. Okay, ma'am. Thanks. It's a statement sum. Let's write down. Start by what's given to you. सबसे पहले आपको question में क्या बताया है? First thing they are saying is, what was the temperature of Srinagar on Monday? How much drop was there?
Drop by 2 means? Tell me if this part is clear. ट्यूसडे के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और कितना इंक्रीज हुआ? 4 डिग्रीज. So the temperature on Wednesday. Rose by 4 means increase by 4. Opposite signs, tell me what will be the answer. Yes, Anand? We have to do the next question also now. Okay, ma'am. Yes. Three with minus sign. यूनिट्स लगाना नहीं भूलना, बिकॉज हम टेम्परेचर लिख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस जरूर लगाना है आपने. Very good. All the students who have sent the message, Smaira, Ananya, Sia, Gunjanpreet, Manreet, your answers are right. Has everyone noted down? Question number 4. A plane is flying at a height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? So there is this picture given on left side, as you can see. ये नीचे submarine है and ऊपर आपके पास plane है. दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे हैं vertically. जो प्लेन है इट इज 5,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, और जो सबमरीन है इट इज 1,200 मीटर्स बिलो द सी लेवल. प्लेन पानी के ऊपर है, सबमरीन पानी के नीचे है. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ फार अवे दे आर फ्रॉम ईच अदर. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आपको ये फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम द पिक्चर गिवन कैन यू क्विकली आंसर के कितना है? Yes, Chirag and Damandeep have answered. Their distance is 6,200 meters. But इसको लिखेंगे कैसे? गुरसिमरन, जब हम distance लिखते हैं हम distance के साथ sign नहीं लगाते. Distance is free of direction. There is one definition जो मैंने नहीं discuss की थी आपके साथ. हम वो concept अभी use करेंगे. Let us see. आपके पास ये लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिखा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. तो जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है, अगर आप इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग विद डिस्टेंस, उस केस में हम क्या करेंगे? हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यूज करेंगे.
एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इस तरह का होता है. इट्स लाइक वी आर हैविंग टू वर्टिकल लाइंस अराउंड आवर इंटीजर. जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमारे नंबर के साइड पे ये दो वॉल्स क्रिएट हो जाएंगी. इट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है इंटीजर में जो नंबर है वो क्या है. सिंपली आपका जो भी इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन उसका रहने दो, सिर्फ नंबर बताओ मुझे क्या है. अगर मैं लिखूं 50 और ये बाहर ऐसे साइन लगा दूं, इसका आंसर आएगा 50. कोई साइन नहीं लगेगा इसके साथ. अगर मैं लिखती हूँ -50, इसका आंसर भी क्या आएगा, 50 आएगा. नंबर लिखना है आपने, साइन नहीं लिखना. यस अनहद. Ma'am, I have no doubt. ओ ओके, यू आर. Ma'am, it was ओके. सो जब भी डिस्टेंस का आएगा आपके पास क्वेश्चन, आगे भी आएंगे, कीप इन माइंड, आपके पास चैप्टर में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम डिस्टेंस के साथ काम करेंगे. जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे टू प्लेसेस के बीच में, तब हम क्या लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन लिखेंगे. लेकिन अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तब आप साइन नहीं स्किप कर सकते. द वे टू राइट दिस आंसर विल बी अ लिटिल डिफरेंट, सो मेरे साथ ध्यान से नोट डाउन करना. Just finish this and then you may go. Finish this. I want you to draw this picture alongside. Draw it below the question. Draw it after the question. I want everyone just to let me know once you have noted this down, and then I will end the meeting. Those who have done, they may leave.
Sia, you can unmute and ask. Ramandeep, actually, I was sending that message to everyone. Excuse me, ma'am. हाँ जी सिया. मैम ये डिस्टेंस फ्रॉम सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, मैम इसमें आपने माइनस 1200 को 1200 क्यों लिखा? बिकॉज ये जो मैंने बाहर सिंबल यूज किया ना एब्सोल्यूट वैल्यू का, हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना. सिंपल सी बात आपने ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सी लेवल से ऊपर होगा उसके साथ प्लस लगना है, जो पानी के नीचे है उसके साथ माइनस लगेगा. जस्ट बिकॉज, सिर्फ एक रीजन की वजह से ये साइन इग्नोर किया, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेजर द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की वजह से ये जो साइन लगाया है मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का. तो मैम 5000 एंड 1200 को माइनस ही करना था मैम, यहाँ पे टोटल प्लस फाइंड आउट करना है ना, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ऊपर से लेके नीचे तक टोटल बताओ. आप ऐसे सोचो, इसको सिंपली सोचो, यहाँ पे 0 है, ये जो सी लेवल है यहाँ पे आपका ये 0 लेवल है. इससे हम चले गए ऊपर 1 2 3 स्टेप्स दूर. ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, ये 3 मीटर्स पे पहुंच गए. और इससे जब नीचे गए तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे पहुंच गए. अब बताओ मुझे, अगर किसी को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना हो तो वो कितने स्टेप्स वॉक करेगा? मैम 4. काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गए ना, ये 3 ये हो गए, फिर नीचे 2 हो गए, टोटल 5 हो गए. बट जब हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसमें हम फिर डायरेक्शन नहीं देखते कि हम पानी के नीचे जा रहे हैं, पानी के ऊपर जा रहे हैं. हमने सिर्फ देखना है प्लेसेस दूर कितनी है. उस केस में हम साइन इग्नोर करते हैं. बट साइन हम ऐसे बिना बिना बात के नहीं इग्नोर कर सकते. ऐसे अपनी, वी कैन नॉट जस्ट डू इट एज वी विश. हम अपनी मर्जी से साइन को मिस नहीं कर सकते. सो फॉर दैट देयर इज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, जहां पे आपको साइन को इग्नोर करना है. उस केस में आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करोगे. यस समायरा बेटा, -1200 कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है. ये जो बाहर, मैम जब भी हम डिस्टेंस करेंगे तो हमने साइंस को रिमूव करना है. एंड यू विल डू इट बाय यूजिंग दिस एब्सोल्यूट वैल्यू साइन. ये जो मैंने बाहर ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की है ना, 5000 प्लस का था, ये चेक करो. यहाँ पे मैंने ये वॉल्स जैसी लगाई हैं, ये वाली, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है. जब ये यूज होगा, इसमें से सिर्फ नंबर ने बाहर आना है, साइन नहीं आएगा. ओके मैम. इसको ऐसे सोच के चलो, ब्रैकेट है, इसको ऐसे सोच के चलो. बट इसमें से सिर्फ आपका नंबर बाहर आता है, साइन नहीं आता. साइन अंदर ही रह जाएगा, साइन डिसॉल्व हो जाता है. ओके मैम. ठीक है, इसी तरह से -1200 है, उसमें भी आपका माइनस खत्म हो गया, सिर्फ 1200 आ गया. चिराग, यस, बाय बेटा. If anyone has any question, you may ask. Else, I will just end the meeting. I guess everyone has written that. मैम ये जो आपने साइड पे मैम प्लेन सी लेवल एंड मैम सबमरीन, मैम ये हमने ड्रॉ करना है. हाँ जी बेटा, ये ड्रॉ करना है, इससे आपको समझ आएगा. मैम सो प्लीज वेट फॉर सेकंड. Okay, okay, okay. If you want, I can share it in the group, if that is okay. ओके मैम. Okay, beta. Okay. God bless you. Thank you, Gursimran.